everyone, I am Tanisha and today it's my presentation on the some important topics of the physical chemistry. So let's start. So first is entropy, the property which is used to measure the degree of randomness or disorder of a system. जो प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है रैंडमनेस के बारे में किसी सिस्टम की, so उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं. द ग्रेटर द रैंडमनेस द हायर इज द एंट्रोपी. So crystalline solids have perfect order arrangement of constituent atom, and so liquid have more entropy than solids, and entropy is an extensive property and it is also a stable function. So now what do you mean by the entropy change? The change in entropy during a process when a system undergoes a change from one state to another. So del S is equals to entropy at final minus entropy at initial state. For a reversible process at equilibrium, the change in entropy is expressed as del S is equals to Q reversible at isothermal divided by temperature. So del S is defined as the amount of heat absorbed by 1 mole of the substance isothermally and reversible divided by the absolute temperature. So if we talk about the units of entropy, so units of entropy change in SI system is joule per Kelvin per mole, and in the CGS system is calorie per Kelvin per mole. So now if I talk about the entropy of fusion. So change in entropy when 1 mole of solid get converted into liquid at a particular temperature is called as the entropy of fusion. So entropy of fusion is equals to change del H at freezing point divided by temperature at freezing point. So now the entropy of vaporization when 1 mole of liquid get converted into vapor at particular temperature. So at the time the change in entropy is called the entropy of vaporization. So entropy of vaporization is equals to del HV divided by temperature at the boiling point. So now the entropy of sublimation. So the change in the entropy when 1 mole of solid directly get converts into vapors below their melting point at a particular temperature is called the entropy of sublimation. So here are some factors which affect the entropy of the system. So first is the volume. So more the volume of a given mass of substance, more will be entropy, because when the volume is more, so there is more randomness. And now the presence of impurity. So जैसे हमारे पास impure जो substance present होते हैं वो ज़्यादा disorder होते हैं as compared to pure substances. So वो randomness हमारी बढ़ जाती है, तो इससे हमारी entropy बढ़ जाती है. So now the temperature. So temperature is directly proportional to entropy. When the temperature is increased, entropy also increases, and pressure is inversely proportional to entropy. When pressure is increased, entropy is decreased, as when pressure is increased, so volume is decreased. Now next is mass. So higher mass structure have higher entropy. So now state functions. So the thermodynamic properties which depends only upon the initial and final state of the system and independent of the path followed by the system. So हमारी thermodynamics में वो property जो सिर्फ इस बात पे initial स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ हमारा फॉलोड हुआ है कि कैसे हमारी इनिशियल से फाइनल स्टेज बनी है, ये मैटर नहीं करता कि आइदर कि ये एक स्टेप में बनी है या फिर ये 2 स्टेप में बनी है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं कि क्या पाथ फॉलो हुआ है, उस सभी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस. सो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज के एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्स्ट्रा. और अगर हम पाथ फंक्शंस की बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कि हमने क्या पाथ फॉलो किया है, उन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस. सो जैसे कि वर्क हुआ, हीट कैपेसिटी हुई, ये 3 जो हैं ये पाथ फंक्शंस है और सारे स्टेट फंक्शंस हैं. सो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस भी हैं स्टेट फंक्शन होने के लिए. क्या होता है? सो फर्स्ट जो कंडीशन है, इट मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयर साइक्लिक इंटीग्रल इज 0 एंड इट मस्ट फॉलो यूलर्स थ्योरम. जो यूलर्स थ्योरम होती है उसे फॉलो करना चाहिए. सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि टू शो दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, कि एंट्रोपी, ये तो हमने देख लिया कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन हमें इसमें मैथमेटिकली शो करके दिखाना है कि एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन होती है.
सो इफ एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन देन ds मस्ट बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अगर हम ds यानी डेल एस का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, क्योंकि हमने ये कंडीशन देखी थी स्टेट फंक्शन की, और अगर एंट्रोपिक स्टेट फंक्शन है तो ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हमें पता है कि जैसे कि ds इज इक्वल टू सी डी टी डिवाइड बाई टी प्लस आर डी वी बाई वी, तो ये हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हमने ले लिया तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। तो हमारी जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या बनेगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि डी टी बाई टी ये वाला फैक्टर ये तो हो गया 0, सो हमारी इक्वेशन बनेगी डी एच इज इक्वल टू आर डी वी बाई वी। ठीक है, अब अगर हम v को नीचे लेके जाएंगे तो डी एस डिवाइड बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू आर बाई वी, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम जो अब इक्वेशन हमारी आई है इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम करें, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बार तो ये थी, तो हमारे पास बन जाएगा करली स्क्वेयर एस डिवाइड बाई डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर हमने पहले कांस्टेंट लिया था, अब की बार हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले ली। और अगर इसके अंदर हम करें आर बाई वी का, तो करली आर डिवाइड मतलब कि करली डिवाइड बाई करली टी डी बाई डी टी आर इन टू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 कि करली स्क्वायर एस डिवाइड्स बाई करली टी इंटू करली वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 0। सो नाउ अगर हम बात करें कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे तो हमारा चेंज इन जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। और अगर इक्वेशन 1 को दोबारा से लिखें वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद, तो इसके अंदर आर डी वी बाई वी वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारी जो डी एस होगी वो हो जाएगी सी डी एस इज इक्वल टू सी डी टी डिवाइड्स बाई टी। और अगर हम डी टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी एस डिवाइड्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी वी डिवाइड्स बाई टी। अब डिफरेंशिएशन, अगर हम जो हमारी अबो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, पहले हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया था जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, अब की बार हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे। सो क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर एस डिवाइड्स बाय करली वी करली टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू करली सी वी डिवाइड्स बाय करली वी इनटू टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या लिया है, टेम्परेचर को हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 2 और 3 को, तो एज डी एस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैंड एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो इसके अंदर हमें पता चला कि जो डी एस है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नो मैटर, ये हमें मैटर ही नहीं कर रहा कि पहले हम किस फैक्टर को कांस्टेंट ले रहे हैं, या चाहे हम पहले v को कांस्टेंट लेके t का डिफरेंशिएशन करें या फिर t को कांस्टेंट लेके v का डिफरेंशिएशन करें, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये इस बात को बिल्कुल प्रूव करता है कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ये मैटर ही नहीं करता कि हम पहले किसका करें। सो हैंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। सो नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले तो जितने भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं उनकी लिमिटेशंस को कवर लिमिटेशंस हैं उन सभी को कवर करता है, मतलब लिमिटेशंस का सोल्यूशन देता है, उनका आंसर देता है। सो इट स्टेट्स दैट ऑल द नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, जो भी नेचुरली जो ओकरिंग प्रोसेस होती हैं थर्मोडायनेमिकली वो इरिवर्सिबल होती हैं, मतलब कि जैसे कि रिवर्सिबल मतलब कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। लेकिन जो नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस होती हैं वो सारी इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई कप ऑफ टी है उसको थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे रख देते हैं उसमें चाय डाल के, तो फिर वो चाय ठंडी तो अपने आप हो जाएगी लेकिन गर्म नहीं होगी दोबारा से। और जैसे कि द नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, जब तक अगर हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ना लेंगे तब तक जो हमारी नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं बनेगी। जैसे कि चाय को दोबारा गर्म करने के लिए हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। अब हीट एनर्जी कांट बी completely converted into work without leaving some change in the system,
and all naturally occurring process causes a net increase in the entropy of the universe. The entropy of universe continuously goes on increasing towards the maximum. So ये कुछ consequences थी थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ की. सो नाउ कार्नोट साइकिल. सो जो कार्नोट साइकिल में जो कार्नोट साइकिल दी थी, किसने दी थी? सैडी कार्नोट ने दी थी 1824 में. सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल हीट इंजन इज सेम. द वर्किंग सब्सटेंस इज अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस और वेपर. सभी हीट इंजन का जो वर्किंग सिस्टम होता है वो सब सेम होता है, और जो वर्किंग सब्सटेंस हम इंजन के अंदर डालते हैं वो कोई लिक्विड होता है, गैस हो सकती है, फिर कोई वेपर होता है. So the cycle which is used to calculate the efficiency of heat engine when a heat engine returns to its original state after passing through a number of successive specified thermodynamic changes is called the Carnot cycle. So here are the some conditions which are for the Carnot cycle necessary. So the Carnot engine chosen for that purpose is hypothetical one. जो Carnot engine होता है वो hypothetically होता है, because कोई भी engine 100% efficiency नहीं देता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो Carnot engine है वो very efficient है. So it's also called reversible heat engine because all the operation in the cycle are done by using 1 mole of an ideal gas in a cylinder having weightless frictionless piston under isothermal and adiabatic conditions at different time. So the Carnot engine has following main parts. First is the cylinder, which is insulated on all sides except at the base, which is bottom. So अगर ये मतलब इंसुलेटेड है हर साइड से, बॉटम को छोड़ के, तो जो हीट का एक्सचेंज होगा वो इसके बॉटम से हो सकता है. द बेस इज कंडक्टिंग सो दैट द हीट कैन बी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड. Next is an insulated non-conducting material through which heat transfer is not possible. एक ऐसा insulated non-conducting material होता है जिससे हीट जो ट्रांसफर होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. और थर्ड जो है, और जैसे टू हीट रिजर्वोयर. सो वन इज हॉट रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिसको हम शोर्स बोलते हैं. और where heat capacity is infinite, so the temperature of the hot reservoir remains constant even after losing any amount of energy from it. अगर इसके अंदर से थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी हो जाती है तब भी इसका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है. एंड अदर इज कोल्ड रिजर्वोयर होता है जिसको हम सिंक बोलते हैं. तो मतलब जिसकी हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, और so that the temperature of the coal remain constant even after taking any amount of heat from it, energy amount from it. अगर थोड़ी बहुत एनर्जी से ले लेते हैं तो भी जो इसकी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है. So for isothermal expansion, the cylinder is put on the source so that exchange on heat can take place. So here heat flows from hot reservoir to gas, which results in expansion of gas, that is volume increases and the pressure is decreases. As whole of the heat is used in expansion, so the temperature of gas remains constant. So dt is 0, d is equal 0, dh is equal 0. So जो हीट के अंदर चेंज आया है वो पॉजिटिव होगा एंड एंट्रोपी आल्सो विल बी द पॉजिटिव. सो फॉर isothermal compression, the cylinder is put on the sink so that exchange of heat can take place. Now press the piston downward, which causes the compression of gases. The heat released due to compression of the gas flows from gas to cold reservoir, so the gas compression at the same temperature, so the volume decreases and the pressure is increases. So dt is equal 0, de is equal 0, ds is equals to 0. But the dq in this case will be negative, and also the change in entropy will be negative. So for adiabatic expansion, the cylinder is put on the insulating material so that no exchange of heat can take place, because the cylinder is conformed by non-conducting wall. So now let piston rise slowly upward, which continuously result in expansion of gas, that is volume increases and pressure is decreases, and it occurs by using internal energy of gas molecules so that the temperature of gas decreases. So dt will be negative, de also negative, dh also negative, but the change in heat and change in entropy will be 0. And for adiabatic compression, the cylinder is put on the insulating material so that no exchange of heat takes place, because the gas cylinder is conformed by non-conducting wall. Now let piston press slowly downward, which continuously results in compression of gas, that is volume decreases and pressure increases, and it results in release of energy which is absorbed by gas molecule, so that
the temperature of gas increases, so dt will be positive, de also positive, th also positive, but the change in heat and change in entropy will be 0. Now there is a relation which we have to drive. So the heading is entropy change for an ideal gas with change in P, V and T. So let us suppose that an ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion on absorbing small amount of heat and thus the entropy change is given by. So entropy change तो हमें पता है, entropy change होता है as Q reversible into isothermal process divides by T. So हम इसको लिख सकते हैं DE प्लस पी डी वी डिवाइड्स बाई टी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सी वी होता है वो डीई डिवाइड बाई डी टी होता है और जो पी होता है वो एनआरटी डिवाइड बाई वी होता है. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो टी डी एस इज इक्वल्स टू डीई प्लस पी डी वी. और हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, जो हमने रिलेशन देखा था, अगर हम डीई को लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं सी वी डी टी प्लस पी डी वी. सो टी डी एस, और हम जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उससे अगर P की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर टी डिवाइड्स बाई वी इंटू डी वी. सो अगर हम अपनी अबो इक्वेशन को T से डिवाइड करें और इंटीग्रेट कर दें जो फॉलोइंग लिमिट्स दी हैं, तो क्या बन जाएगा कि अगर हम ds पे लिमिट लगा दें S1 से S2 और जो T था इसको और सी वी डी टी बाई टी करके हम इस पे कर दें T1 से T2 प्लस में R था, जैसे कि अगर हम T को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ तो CV वाले के साथ तो dt बाई टी हो जाएगा और इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा. सो प्लस में आ जाएगा हमारे पास R इंटू वॉल्यूम की अगर लिमिट लगाएंगे V1 से V2 तो हमारे पास क्या बन जाएगा dV बाई V. सो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा डेल एस, क्योंकि इसकी लिमिट खोलेंगे तो जैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाता है और अगर हम लिमिट लगाएंगे तो वो बनेगी हमारी S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 होता है चेंज इन एंट्रोपी. सो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल एस. सो नाउ अगर हमें पता है जैसे जैसे डी टी बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो लोग में जाता है, सो हमारे पास बन जाएगा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन. सो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे. अब हम जानते हैं P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड्स बाई T2. सो अगर हम इसे निकालना चाहें V1 डिवाइड्स बाई V2 का रेशियो तो हमारे पास वो आ जाएगा T1 T2 T1 P2 डिवाइड्स बाई T2 P1. सो अगर हम इसके अंदर पुट कर दें हमारी वैल्यूज, सो हमारे पास क्या बन जाएगा डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन टी टू डिवाइड्स बाई पी टू टी वन. सो अगर हम इसको लिख दे तो हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीबी की अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो क्या बन जाएगा सीपी माइनस आर एल एन टी टू डिवाइड्स बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन टी टू टी वन. सो डेल एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सीपी एल एन टी टू डिवाइड्स बाई टी वन माइनस आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाई टी टू P1 बाई P2, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग में मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस में जाते हैं और जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस में जाते हैं. सो हमारे पास हमारे जो सेम फैक्टर्स हैं जो अपोजिट हैं वो कट जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में डेल एस बचेगा CP ln T2 डिवाइड्स बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2. इसको हम अपनी इक्वेशन सेकंड बोल देंगे. और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल एस इज इक्वल टू आर एल एन वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू, अगर हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.303, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए. सो ये बन जाएगा 2.303 लॉग वी टू डिवाइड बाई वी वन. सो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर करें तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 मेरी बन जाएगी 2.303 लॉग आर लॉग P1 बाई P2 और इसको मैं लिख सकती हूँ 2.303 आर लॉग V2 डिवाइड बाई V1. कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वेशन 1 बन जाएगी डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू सी वी 2.303 आर लॉग T2 बाई T1. और अगर कांस्टेंट प्रेशर करूँ तो इक्वेशन सेकंड मेरी बन जाएगी, सो डेल एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल 2.303 लॉग T2 डिवाइड्स बाई T1. सो ये हमारा एक डेरिवेशन था, एक रिलेशन था जो हमें प्रूव करना है. सो नाउ हमें एक और रिलेशन प्रूव करना है, जैसे कि हमें डेल
जो जी होता है वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। सो अगर हम बात करें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और तो डेली को हम लिख सकते हैं क्यू माइनस में, अगर मतलब कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है तो हम डब्ल्यू को माइनस में लेते हैं। सो क्या होता है, कुछ वर्क ऑफ एक्सपेंशन पर प्लस कुछ वर्क जो हमारा यूजफुल होता है वो। तो जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है वो पी डेल वी के इक्वल होता है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कि डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी माइनस वर्क यूजफुल। सो डेल ई प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क यूजफुल। एंड अगर हमें क्यू की पता है कि डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सो टी डेल एस इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। सो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा डेल ई प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस वर्क यूजफुल। सो डेल एच इज इक्वल्स टू टी डेल एस माइनस वर्क यूजफुल। सो हमारे पास यहाँ से अभी हमें पता है कि जो जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल एच माइनस टी डी एस। तो इसकी जगह हम जी रख सकते हैं, तो जी इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ यूजफुल। अगर हम जी को इधर ले जाएंगे तो माइनस जी इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, दैट इज डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी इज मेजर ऑफ यूजफुल वर्क done during the change. Decrease in free energy change is the cause of spontaneity of the reaction. So now the third law of thermodynamics, so it states that the absolute 0 Kelvin temperature the entropy of the perfectly crystalline solid becomes 0. अगर हम absolute 0 Kelvin temperature लेते हैं तो जो perfectly crystalline solids होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट इज बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द experience and there is no direct proof of this law. So now the application of third law of thermodynamics, it helps in the calculation of the absolute energy of the substance at any temperature. The entropy change of a reaction can be calculated as del S naught is equals to del S of products minus del S of reactants. अगर हमें कैलकुलेट करना तो हम प्रोडक्ट के में से रिएक्टेंट के माइनस कर देंगे। सो अगर मैं मानूं कि जो डेल एस प्रोडक्ट की होगी वो हो जाएगी सम ऑफ स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट, और डेल एस आर जो है मेरा वो है सम ऑफ स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट। सो हमें पता है डी एस मेरा होता है डी एच डिवाइड बाई डी डी एच डिवाइड बाई टी के इक्वल। सो इसको मैं लिख सकती हूँ सी पी डी टी। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें लिमिट्स लगा के, तो इस पे लगा देंगे हम S1 से S2 लिमिट्स और इस पे लगा देंगे हम T1 से T2 लिमिट्स। तो मेरा क्या बन जाएगा डी एस टू माइनस डी एस वन इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी टू माइनस टी वन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल एस इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी टू माइनस टी वन। अगर टेम्परेचर मैं T1 ले लूँ कि 0 केल्विन है तो मेरा S1 होगा वो 0 हो जाएगा। अगर T2 मैं ले लूँ कि T केल्विन है तो S2 मैं ले लूंगी S। तो क्या बन जाएगा S माइनस जीरो इज इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस जीरो। सो क्या बन गया S इज इक्वल टू 2.303 सी पी log T. The above equation help us to calculate the values of directly by knowing the value of Cp and T. So there is a note that if a gas is at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius temperature, then the entropy of a gas at 25 degrees Celsius temperature will be equal to the sum of the entropy involved in the different stages. So S is equal to मैं अगर लूँ तो Cp जब ये solid state में था तो मैं अगर लिमिट लगाऊंगी when it is in the solid state, so 0 से लेके एल एन टी टी एम तक लग जाएगी, प्लस में डेल एच एम डिवाइड्स बाई टी एम प्लस सी पी जो लिक्विड में है तो इस पे टेम्परेचर टी एम से लग जाएगी टी बी एल एन टी प्लस डेल एच वी डिवाइड्स बाई टी प्लस सी पी एट गैसियस, इस पे लिमिट लग जाएगी एल एन टी। सो नाउ देयर आर टेस्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो इट हेल्प us to calculate the Gibbs free energy. The del G can be calculated by knowing the del H value and absolute entropy from third law of thermodynamics. Also helps in the calculation of the equilibrium constant. So now limitation of third law of thermodynamics. Exception to third law of thermodynamics that CO solid, NO solid, N2O solid, Cl2 solid have some entropy even at absolute zero temperature. This entropy which is present in substance even at absolute zero temperature is called residual entropy. क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार तो जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है, लेकिन जो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स है जैसे CO, NO, N2O ये एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी रखते हैं। सो ये लिमिटेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थैंक यू।